Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 16th October and we're going to be discussing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. So आज का जो दिन है 16th October, it is the World Food Day, right? So we're going to be seeing about this important day and बहुत सारे editorials उसी relating आए हैं. So I'm going to club all the editorials and I'm going to discuss this with you. So remember October 16th World Food Day और इस बार का जो थीम है ये लिखा है यहाँ पे Right to Foods for a Better Life and Better Future. Okay, this is the theme, Right to Foods for Better Life and Better Future. Now, why do we celebrate October 16th only as World Food Day? What is so special about this day? It is because FAO, यानी Food and Agricultural Organization, जो एक specialized agency है United Nations की, this was established on this day, 16th October in the year 1945. इसका headquarters है रोम, इटली में, and ये काम करता है to ensure zero hunger, to reduce hunger, eradicate hunger, poverty, and to increase the agricultural productivity. Therefore, Food and Agricultural Organization. Right? Now, in this passage, we also get some important facts for you. So, we're going to be discussing this. तो यहाँ पे दिया गया है कि 3 organizations हैं FAO, इनके अलावा we have IFAD, और तीसरा है WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. सो व्हाट आर दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एंड तीसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस, तीनों हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में ही है. ओके, सो IFAD जो है इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फंडिंग देता है. सो दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आया था 1977 में, और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये आया था 1961 में. सो दिस बेसिकली ऑल्सो हेल्प्स कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर, राइट, टू ऑल्सो इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी. 1961 में ये आया था एंड इट गेट्स डोनेशंस, मेनली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं गवर्नमेंट से. ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, राइट, एंड इवन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ये मिलके काम करते हैं लाइक एन NGO टू इंश्योर कि हंगर कम हो, राइट. इंडिया में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस है? ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में क्या कर रहे हैं, why did I discuss all these 3? Because these 3 have been collaborating with the government of India. India के साथ collaborate कर रहे हैं to mainly uphold the human right of right to food, right? They are also trying to bring a program ताकि hunger कम हो. ठीक है? That is why these 3 organizations have been named. Now coming back to this, as I asked you the question कि इंडिया क्या कर रही है, so इंडिया में we have various acts, जैसे कि the National Food Security Act. ये कब आया था? 2013 का एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, टू ensure कि food will be accessible to all, right? Ensuring food security for all. So apart from this, we also see the public distribution system. हमारे जो राशन कार्ड्स हैं जो 2-3 रुपए में they give अनाज, right? Now again a question for you. ग्रेन ATM ये किस जगह पे एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया में? फर्स्ट टाइम ग्रेन ATM, वेयर हैज दिस बीन क्रिएटेड? अन्नपूर्णा ATM भी कहते हैं. तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस हम स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम करते हैं, पोषण अभियान, ऐसे सब स्कीम्स से वी आर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, वी आर इंश्योरिंग कि न्यूट्रिशन mainly reach to the vulnerable sections, to the children and the women, right? So these are some steps that are taken by India, but India is not taking enough steps. And how do we know this? It is because of the Global Hunger Index. So an important index, Global Hunger Index, और ये recent rank है हमारा 2024 का. Now who brings about this report? 2 ऑर्गेनाइजेशन है,
कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो एक आयरिश इंस्टीट्यूशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड. एंड द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, वेल्थ हंगर हिल्फे. ओके, सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे, दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया रैंक्स 105th. ओके, एंड द बॉटम मोस्ट कंट्री दैट इज सिवियरली अफेक्टेड बाय हंगर कौन है? सोमालिया. Okay, ये bottom most country है. Now, what are the indicators that are given in the global hunger index? ये 4 indicators हैं. जल्दी से देखते हैं. What are the 4 indicators? First is under nourishment. Okay. Next one, child stunting. तीसरा child wasting. चाइल्ड वेस्टिंग. एंड चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी. तो ये 4 इंडिकेटर्स से हमको इंडेक्स मिलता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ओके, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देयर इज रैंकिंग बिटवीन, मतलब आपको स्कोर्स मिलते हैं 100 से लेके 0 तक. इफ इट इज 0 दैट मीन्स यू हैव डन वेरी वेल इन रिड्यूसिंग हंगर, और अगर 100 है दैट मीन्स यू आर वेरी बैड. ठीक है, इंडिया को क्या स्कोर मिला है? इंडिया को स्कोर मिला है 27.3, और ये जो स्कोर है हमको लेके आता है सिवियर हंगर कैटेगरी में, विच इज नॉट गुड. दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी हंगर है. दैट मीन्स देयर इज नॉट मच एक्सेस टू फूड. सो दिस इज व्हाट द रिपोर्ट इज सेइंग. तो ये जो 4 डिटर्मिनेंट्स है या फैक्टर्स हैं जो दिए गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, व्हाट आर दे? अंडर नरिशमेंट, यानी कि दिखाता है कि आपको कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, मैल न्यूट्रिशन. एंड व्हाट एज ग्रुप आर वी टॉकिंग अबाउट? बिलो 5 years. ओके, सो व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर? जो चाइल्ड बिलो 5 years है, उससे रिलेट करके हमने ये इंडेक्स क्या रिपोर्ट हमको समझ में आता है. नेक्स्ट इज चाइल्ड स्टंटिंग. स्टंट का मतलब है हाइट कम होना. सो यहाँ पे आपका हाइट कम है अकॉर्डिंग टू योर एज. फर्दर चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि यहाँ पे आपका वेट कम है अकॉर्डिंग टू योर हाइट. वेट कम है अकॉर्डिंग टू योर हाइट. एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इट्स अ मिक्स ऑफ फैक्टर्स जहाँ पे you are undernourished, malnourished, as well as you're living in unhealthy conditions, जिसके कारण डेथ भी होता है बच्चों का. So that leads to all of this. So these are the 4 factors that are mainly giving the global hunger index. इंडिया का रैंक 105. तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट द रैंकिंग, वी डिस्कस्ड द इंडिया जो स्टेप्स लेके आ रही है, एंड वी डिस्कस्ड द थीम अबाउट दिस. सो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि वी शुड नॉट ओनली इंश्योर कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े. That is not going to help you with World Food, achieving objectives of World Food Day. But accessible होना चाहिए food. Okay, there should be equitable access to food. There should be enough sustainable systems with regard to food, ताकि हम इस theme को सही तरह से achieve कर पाए. Let's proceed to the next article now. And यहाँ पे हमको पता है कि recently elections हुए हैं जम्मू कश्मीर में, एंड इलेक्शंस होने वाले हैं 2 स्टेट्स में, जो है महाराष्ट्र एंड झारखंड में. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी सीइंग अबाउट दिस. सो लेट्स गेट बैक टू दिस. फर्स्टली जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए हैं, वी नो दैट द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हैज वन दिस. एंड कौन अभी चीफ मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के? दिस ही वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर बिफोर. This is Omar Abdullah. तो ये आपको फैक्ट आ सकता है. Omar Abdullah, he will be swearing in as the जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं, महाराष्ट्र में होंगे 288 सीट्स है यहाँ पे, एंड होगा नवंबर 20th को. झारखंड में यहाँ पे 2 फेजेस में होंगे, नवंबर 13th एंड नवंबर 20th. Now coming back to this, here we have 43 constituencies,
for this particular place. Now let's understand more about what other things have been given in this headline given in the Hindu. यहाँ पे जो राजीव गांधी विन हुए थे इलेक्शंस, राइट, 2 सीट से, फर्स्ट इज वायनाड इन केरला एंड अमेठी उत्तर प्रदेश, राइट. सो इन्होंने अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, राइट. सो राहुल गांधी ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े एंड ही हैज वन बोथ, सो दैट देयरफॉर ही हैज केप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी. ओके, इन्होंने ये रिटेन किया है, लेकिन वायनाड को उनको छोड़ना पड़ा. सो नाउ वी विल हैव द बाइपोल इलेक्शंस इन वायनाड एंड उनकी सिस्टर यहाँ पे इलेक्शंस में लड़ेंगी. ओके, दैट्स प्रियंका गांधी वाड्रा. So this is mainly the important points that have been given in this article. Now let's get back to what should we be expecting in your exam with regard to state elections. तो ये थोड़ा हम डिस्कस करते हैं अभी. State elections की अगर हम बात करें, what is the article that talks about state elections? It's Article 168. Article 168 talks about constitution of legislature in the states. ओके, तो हम लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन होता है? वी हैव द गवर्नर जो असेंट देता है बिल्स के लिए, राइट. जैसे कि प्रेसिडेंट होता है सेंटर में टू अप्रूव और टू गिव असेंट टू द बिल्स इन द पार्लियामेंट, वैसे ही गवर्नर का रोल है इन द स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट लेजिस्लेचर इनके 2 टाइप के हो सकते हैं. एक है जहां पे सिर्फ एक ही असेंबली है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिकैमरल, या इनमें 2 हाउसेस हो सकते हैं जिसका नाम है बाइकैमरल. बाइकैमरल 2 हाउसेस यानी कि जैसे हमारे सेंटर में इन द पार्लियामेंट वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही हमारे स्टेट में कुछ स्टेट्स में यू हैव 2 हाउसेस जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि विधान सभा एंड विधान परिषद. ओके, जो आपका विधान सभा है दिस इज योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आपका जो विधान परिषद है इट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. नाउ विच आर द स्टेट्स दैट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कौन से स्टेट्स में यू हैव 2 हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद, ये यहाँ पे दिया गया है. जम्मू कश्मीर ऑल्सो वॉज वन ऑफ दिस, बट 2019 जब इनका स्पेशल स्टेटस रिपील किया गया था, आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड, तभी इट लॉस्ट दिस इन टर्म्स ऑफ इट बिकेम यूनियन टेरिटरी एंड अभी सिर्फ एक ही हाउस है यहाँ पे विच इज द विधानसभा. सो कमिंग बैक टू दिस, विच आर द स्टेट्स दैट हैव 2 लेजिस्लेचर्स? दिस इज आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. नाउ जस्ट अ ट्रिक, अगर आपको याद होगा, यू कैन रिमेंबर इट एज बुआ KTM. ओके, कुछ ऐसे याद रख लेना, बुआ KTM चलाती है, या व्हाटएवर यू वांट टू रिमेंबर इट एज. सो व्हाट इज दिस? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. सिर्फ यही स्टेट्स के पास दोनों विधानसभा और विधान परिषद है. Now when you talk about bicameralism, अगर क्वेश्चन आता है कि ये कौन से एक्ट के थ्रू आया था, that is through the Montagu-Chelmsford reforms. ये रिफॉर्म्स कब आए थे? 1919 में. ओके, सो Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स ने बाइकैमरल लेजिस्लेचर तो लेके आए थे, बट दिस वॉज इन द सेंटर, यानी कि जो अभी का लोकसभा राज्यसभा है उसका फोराना. सो दिस इज व्हाट वाज बॉट इन द ईयर 1919. बट स्टेट्स में भी बाइकैमरल लेजिस्लेशन, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हम लेके आए थे. सो वेयर वर द प्रोविजंस कम अक्रॉस, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. अ क्वेश्चन फॉर यू दैट यू हैव टू आंसर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से एक्ट के थ्रू आए थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स. ओके, ये कौन से एक्ट के थ्रू आए थे, एंड आपको बताना है वो एक्सटेंड भी कौन से लेजिस्लेशन में आए हैं, ये भी आपको बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया. एक्सटेंशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट्स कौन से आर्टिकल के थ्रू, एक्ट के थ्रू आया था, ये भी आपको बताना है. So this is with regard to the organization of state legislature. Now important aspect for you here, यहाँ पे महाराष्ट्र में we see that दोनों लोकसभा एंड दोनों अपर हाउस एंड लोअर हाउस यानी विधानसभा एंड विधान परिषद है.
Now what is the strength of the legislature? जैसे हमको पता है with regard to लोकसभा and राज्यसभा, but what about this particular house? तो अगर आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मिनिमम आपका होना चाहिए 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या मैक्सिमम हो सकता है 500, इससे ज्यादा नहीं हो सकता. सो ईदर 60 और in the higher end you have 500. Of course there are exceptions. कुछ states का population छोटा होता है, right? So to bring about adequate representation, उनके constituent assemblies छोटे होते हैं. जैसे for example अरुणाचल प्रदेश की बात करें या सिक्किम की बात करें या गोवा की बात करें, यहाँ पे your constituencies are merely 30, सिर्फ केवल 30. ठीक है. वैसे ही यू हैव नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, यहां पे भी 40 and 44 है. सो 40 and 44 वी हैव हियर. सो दीज आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वैसे ही वी हैव फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. ओके, यहाँ पे आपका मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए 40 एंड मैक्सिमम हो सकता है 1/3 ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इतना आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए. ओके, हो सकता है. दिस इज व्हाट योर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज. अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies. Okay, so this is the assembly that we're talking about, and Maharashtra and Jharkhand is going under elections. Let's now proceed to the next article. Next article है IMD के बारे में. Now IMD बहुत बार किया है, so let's have a quick, kind of a revision about it. But before that, क्या कॉन्टेक्स्ट है ये पहले देखते हैं. तो IMD ने अभी इशू किया है कुछ वार्निंग्स, रेड अलर्ट्स. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में. ओके, बिकॉज यहाँ पे भारी बरसात होने वाली है एंड इट डिड सो इवन यस्टरडे फॉर तमिलनाडु. इसीलिए स्कूल्स और सब बंद हैं इन दिस स्टेट. ओके, सो बारिश की वजह से इट इज एक्सपेक्टिंग टू close down and shut these schools and colleges. Now let's get back. IMD कब आया था? इंडियन मीटियोलॉजिकल का काम क्या है? मेनली फंक्शन करता है कि आपको वार्निंग्स देना. इट गिव्स वेदर अपडेट्स, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सतर्क रहने के लिए बताता है. इट टॉक्स अबाउट गिविंग अस वार्निंग्स, ताकि जो रेपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इससे हम बच सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं. सो दीज आर द पॉजिटिव्स ऑफ IMD. Now IMD is one of the oldest organization. 1875 में ये आया था. एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर क्वेश्चन आता है हेडक्वार्टर, इट इज इन न्यू दिल्ली. ओके, जो IMD है ये 4 कलर कोड्स में वार्निंग्स देता है. व्हाट आर द 4 कलर कोड्स? दैट इज विबग्योर के 4 कलर्स, दैट इज ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. रेड मतलब सबसे ज्यादा खतरा, ओके, डेंजर. व्हेयरएज G, it means normal stable conditions. So these are the 4 colors: green, yellow, orange, red. And अभी जो IMD ने अलर्ट दिया है वो कौन सा कलर का है? वो रेड अलर्ट है. So it is talking about highest destruction capabilities हो सकते हैं यहाँ पे, extreme high rainfall. Let's proceed to the next article. Now the next article is with regard to some new launches. So यहाँ पे जो हमारा central government है, इन्होंने set up किया है AI research hubs. कहाँ पे किया है ये AI research hubs? There are these AI research hubs को हम कहते हैं COE. What is COE? It's called as the Center of Excellence. तो ये Center of Excellence will be for AI पे research in 3 sectors. Which are the 3 sectors? First sector is with regard to health. The second sector is with regard to agriculture. And the third and the final sector is with regard to sustainable cities. Okay, तो ये 3 sectors. और ये जो सेंटर ने सेटअप किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ दीज 3 सेक्टर्स, ये कहाँ पे किया है? तो ये देखते हैं. हेल्थ की अगर हम बात करें, इट हैज ब्रॉट दिस अबाउट इन एम्स दिल्ली एंड IIT दिल्ली.
ओके, तो ये पहला है फॉर हेल्थ. फॉर एग्रीकल्चर दिस इज इन IIT रोपर, जो है पंजाब में, राइट, IIT रोपर. द थर्ड सस्टेनेबल सिटीज, ये है IIT कानपुर में, IIT कानपुर. ओके, तो आपको ये 3 पता होना चाहिए कि कहां पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज बेसिकली यू कैन से इंस्टीट्यूशन जहां पे हम कोलैबोरेट करेंगे, फंक्शन करेंगे विद इंडस्ट्रीज एंड विद स्टार्टअप्स, ताकि हम रिसर्च को बढ़ा सकें, रिसर्च बढ़ा सकते इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, सो दैट इज अ मेजर एम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च बढ़ाना, कौन से सेक्टर्स में? हेल्थ, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल सिटीज एंड सो ऑन. इससे क्या होगा? इससे ना केवल जॉब्स क्रिएट होंगे, राइट, जॉब्स क्रिएट होंगे, वेल्थ क्रिएट होगा, एज वेल एज हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेजेंस है ग्लोबली, इसको भी हमको बढ़ाना है. एंड वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट रैंकिंग इन दिस. हैव यू हर्ड ऑफ AIPI? आर्टिफिशियल you can say preparedness index है, राइट, AIPI. सो AIPI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स में आपको बताना है कि किसने रैंक दिया है एंड इंडिया का रैंकिंग क्या है, बिकॉज हमको ये भी बढ़ाना है, हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स भी बढ़ाना है, राइट. सो आपको ये मुझे डेटा बताना है जो मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है. सो यू हैव टू टेल मी दिस. ओके, नाउ गेटिंग बैक. सो with regard to the COE which is the Center of Excellence, हम क्या करना चाहते हैं? हम रिसर्च बढ़ाना चाहते हैं, हम फंक्शन करना चाहते हैं स्टार्टअप्स के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि हम कोलैबोरेट करें एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर जॉब्स इन दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स, इन दीज 3 सेक्टर्स, राइट. इससे हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बढ़ेगा, है ना. तो आप ये भी मुझे मैसेज कर लेना कि स्टार्टअप में इंडिया का रैंक क्या है. Okay, what is India's rank in the startup ecosystem? So this is some questions that you have to answer, and in the next class I'm going to be discussing these questions, the answers with you, and I'm going to see how many of you all have got this absolutely correctly. चलो, so ये हमने पूरा देखा है with regard to COE. और कितना फंडिंग गवर्नमेंट ने रखा है इसके लिए? 990 करोड़. इतना फंडिंग ये आउटले है, फाइनेंशियल आउटले है फॉर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव बाय द सेंटर. Proceeding to the next article. Our next article is not new. ये आपने कल भी देखा होगा, which is with regard to Nobel Prize for Economics. तो यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं बिकॉज आज के पेपर में वापस से दिया है, राइट. सो we'll see what exactly this is. So the Nobel Prize for Economics किसको मिला है? Darren Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson. ओके, इसमें से डैरन एंड जेम्स ने लिखा है एक बुक, व्हाई नेशंस फेल. व्हाई नेशंस फेल. ओके, सो दिस इज द नेम ऑल्सो ऑफ द बुक. किसने लिखा है? डैरन एसमोग्लू एंड ए रॉबिन्सन, और तीनों ने, जेम्स रॉबिन्सन, और तीनों ने रिसर्च किया है इसके बारे में. So what did they win the Nobel Prize for? They have won the Nobel Prize for giving us researching about the wealth inequality among the nations. कि क्यों कुछ nations rich है, कुछ nations poor है. What is the reason for it? है ना, तो इसके बारे में they have given us some important understanding. So let's see some basic understanding of what they have given us. तो जो Nobel Prize अवॉर्डीज हैं, नोबेल लॉरियट्स हैं, इन्होंने बताया है कि टू अंडरस्टैंड और टू काइंड ऑफ रिलेट व्हाई नेशंस आर रिच और पुअर, एन इंपॉर्टेंट सिस्टम इज योर सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस. तो जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, they play a very important role in understanding कि क्यों कुछ nations poor है और rich हैं. That is what they are saying. Societal institutions give us an understanding of economic prosperity of the wealth of a country.
तो ये दो टाइप के होते हैं, इन्होंने क्लासिफाई किया है दो टाइप में. विच आर द टू टाइप्स? इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव? इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो है दैट फॉलो रूल ऑफ लॉ, दैट आर फॉलोइंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. ठीक है, दे फॉलो प्रॉपर्टी लॉज, प्रॉपर्टी राइट्स. तो ये पूरा सिस्टम में चलते हैं, इंक्लूसिव है इन देयर नेचर. इसके वजह से इन्वेस्टमेंट भी आता है बिकॉज यहां पे इतना सिस्टमैटिक है सब कुछ. ऑन द अदर हैंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो है दैट आर concentrating the power in a few, so only few have the power. ये impose किया जाता है and कुछ ही institutions, so when the government is facing autocracy, जहाँ पे कुछ लोगों के पास ज्यादा पावर है, यहाँ पे ऐसे institutions बनते हैं. तो नोबेल लॉरेट्स का कहना है जो कॉलोनियल पावर्स है हिस्टोरिकल भी कुछ रिलेट करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट एग्जैक्टली दे आर सेइंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम रिलेट करते हैं, जो कॉलोनियल पावर्स थे, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए उस जगह में जहां पे वो स्टेबल लिविंग है. ओके, जहां पे स्टेबल कंडीशंस हैं वहां पे उन्होंने इंक्लूसिव बनाया ताकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी हो. एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग इन दोज प्लेसेस वेयर the regions are stable and they brought these institutions there. On the other hand, ये extractive institutions उन्होंने बनाया उस जगह में जहां unstable conditions है, जहां पे distress है, okay, conflict है, तो उन्होंने वहां पे settle करना ठीक नहीं समझा. So what did they do? They started exploiting the resources faster in those regions. Okay, they started making institutions that are imposing in nature. Extraction किया जैसे tribal regions में, right? So they tried to take, because वहाँ पे revolts सब ज़्यादा होते थे. So once they extracted, they did not want to settle there. They didn't want to settle in the forest, right? तो वहाँ पे उन्होंने extractive institutions किया. इसीलिए वहाँ पे poverty ज़्यादा है, stagnant growth है ना, declining growth है. लेकिन inclusive institutions में ऐसे जगह में you will find that it is long-term growth, prosperity, and therefore these are the reason for long-term gains and why countries are rich. ठीक है, तो ये पूरा स्टडी दिया है नोबेल प्राइज विनर्स ने, डैरिन, जेम्स एंड who was the other guy? It is Simon. Okay, so you can remember these three names because आपने मेडिसिन में भी किया होगा, you must have heard about इवन नोबेल पीस प्राइज आया था रिसेंटली, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं. नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? एक इंस्टीट्यूशन है, जापानीज इंस्टीट्यूशन, राइट, निहोन. तो इन्होंने काम किया है किसके लिए? दे हैव वर्कड फॉर जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स है, न्यूक्लियर पावर को कम करने के लिए, राइट. सो दैट इज व्हाट वी हैड सीन इन द अर्लियर क्लास एज वेल. ओके, गेटिंग बैक टू दिस, वी हैव ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस. तो आपको नॉर्मली कुछ टर्म्स भी आते हैं, व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, तो समझते हैं व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग. ओके, तो ग्रीन वॉशिंग इज बेसिकली आप कुछ चीज लेके आ रहे हो, मान लेते हैं ये चीज है, ये आप मार्केट, ठीक है, मैं कंपनी हूं और मुझे ये मार्केट करना है, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज एब्सोल्युटली गुड. ठीक है, ये तो अच्छे से पेन भी चलता भी है, लेकिन इसमें और एक फायदा है, ये जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी से बना है. ठीक है, ये बहुत ही इजीली बायोडिग्रेड भी होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने एकदम बढ़िया से क्लेम्स किए हैं, बट ये सभी क्लेम्स झूठे हैं. सो नन ऑफ द थिंग दैट आई एम टेलिंग अबाउट हाउ गुड दिस इज, इट इज फॉल्स, इट्स फेक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग. तो कंपनीज भी ऐसा ही करती है, दे काइंड ऑफ ब्रिंग अबाउट अ प्रोडक्ट्स एंड दे से दैट यस दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फैबुलस, बहुत ही इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लीन है, ग्रीन है, ये सब कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फेक, इट्स फॉल्स. सो व्हाई आर दे लाइंग?
ये झूठ इसीलिए बोल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका खरीदे. यू नो देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फैक्टर व्हेन यू सी दैट ये कोई एनिमल क्रूएल्टी से नहीं बना. अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स लेते हो, है ना, इफ इट्स लाइक पेटा, it's animal cruel free, you will probably think of that, okay, this is also good for the environment and all of that, and तभी आप खरीदते हो ऐसे चीजें. So that is why it has an impact on your consumers when you see that the products are better for the environment. लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस लेके आए हैं. किसने गाइडलाइंस लेके आए हैं? दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन CCPA. तो ये क्या है CCPA? CCPA stands for सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ओके, कंज्यूमर अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. और इसका काम क्या है? फर्स्टली ये बना था 2020 में, 2020, यस करेक्ट, 2020 में बना था. What was the major aim of this? To protect consumer rights, right? And this was formed because of an act, Consumer Protection Act, जो 2019 का है, 2019 का ये एक्ट है, जिसने रिप्लेस किया था पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को. तो इसको रिपील करके we have the 2019 Act, 2019 Act, and we bought this body. तो इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज किया है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स कि अभी आप कंपनीज शुड नॉट बी गेटिंग दीज फॉल्स क्लेम्स टू शो दैट देयर प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. ओके, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स और सब आप नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट द गाइडलाइन सेज. ओके, सो वी हैव सीन व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि फोक्सवैगन, ये जो गाड़ी की इट्स अ कार कंपनी. 2015 में फोक्सवैगन ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारे जो एमिशन टेस्ट है, सबसे कम हम एमिशन देते हैं इन द एनवायरनमेंट, राइट? सो दिस अगेन विल हैव इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर कि यस, लॉन्ग रन के लिए ये बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, खरीदता हूं. बट दिस इज अ केस ऑफ ग्रीन वॉशिंग. आइडियली इन्होंने मैन्युपुलेट किया था, ठीक है, मैन्युपुलेट करके इन्होंने बताया था, फॉल्स क्लेम्स थे. तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज करती है और इसी को टारगेट करने के लिए ये गाइडलाइंस लेके आए हैं. सो हियर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिमेंबर इज इफ यू आर क्लेमिंग कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ग्रीन है, क्लीन है, यू नीड टू प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस. इफ यू डोंट हैव साइंटिफिक एविडेंस, आप ये क्लीन, ग्रीन, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें आपके मार्केट नहीं कर सकते हो, आपके एडवर्टाइजमेंट में बता नहीं सकते हो. सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो पूरा हमने इजीली समझा. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article is with regard to the abatement of suicide. What do you mean by the term abatement? Abatement का मतलब है instigate करना, encourage करना या aid करना. That is abatement. तो यहाँ पे एक क्राइम होता है abatement of suicide. आप किसी को instigate कर रहे हो, मदद कर रहे हो, है ना, कि गोलियां, रस्सी दे रहे हो किसी को, ठीक है, दैट मीन्स अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. सो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. यहाँ पे इट्स वन ऑफ द सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है. यहाँ पे अगर आपने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया, दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ फाइन और इवन 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. तो हम क्यों कर रहे हैं ये डिस्कस? बिकॉज दिस वाज अ केस ऑफ अ सेल्समैन. इट्स अ पुराना केस है ये, 2006 का. So in this, what happened is the salesman Rajiv Jain, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था. And it was stated that उनके in terms of एम्प्लॉइज थे, सीनियर एम्प्लॉइज थे, उन्होंने उनको फोर्स किया है, इज व्हाट हिज ओन ब्रदर इन्फॉर्म्ड. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रही था. 2017 में उन्होंने एक जजमेंट पास किया कि हाँ, डायरेक्ट लिंक्स है विद रिगार्ड टू सुसाइड एंड विद रिगार्ड टू द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी. बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि नहीं, देयर शुड बी सम डायरेक्ट लिंक्स दैट शुड बी एविडेंट फ्रॉम दिस, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट नाउ
has given some directives कि आप unnecessary बता नहीं सकते हो कि इसने अबेटमेंट किया है और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते हो. You should have proper evidence to support it. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा. So let's first discuss about abatement of suicide. अबेटमेंट का मतलब हमने देखा ये कौन सा सेक्शन में दिया गया है. सेक्शन 107 जो हमारा इंडियन पीनल कोड है उसमें दिया है, एंड सेक्शन 45 दैट वी कैन नाउ टॉक अबाउट भारतीय न्याय संहिता. तो BNS में सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट अबेटमेंट. अबेटमेंट का मतलब व्हाट इज अ पर्सन डूइंग, इधर वो पर्सन इंस्टिगेट कर रहा है, किसी को फोर्स कर रहा है कमिट करने में, या एंगेज कर रहा है 2-3 लोगों के साथ again to persuade the person to commit suicide, and intentionally हम इसको aid कर रहे हैं, okay, by an act of illegal omission of doing that thing. So helping the person to commit, that also is abatement of suicide. और इसमें आपको 10 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है. So we discussed about the background case जो mention किया है आज के Indian Express में. Further we also see that जजमेंट्स भी आए हैं यहाँ पे. सो जजमेंट्स ने यही कहा है कि यू हैव टू, अगर आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आप लगाते हो, क्राइम लगाते हो सेक्शन 45 के अंदर, यू नीड टू एस्टैब्लिश कि प्रॉपर डायरेक्ट लिंक्स होने चाहिए कि इसने ऐसा किया तो इसने डिजीज ने सुसाइड किया. सो अक्यूज्ड के जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, शुड बी डायरेक्टली लिंकिंग विद द सुसाइड, डिजीज्ड सुसाइड. सो दैट लिंक हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्ली फॉर लेटिंग नो ऑफ दिस क्राइम. नहीं तो किसी ऐसे इनोसेंट लोगों की हत्या बता सकते हैं हम, राइट, इनोसेंट लोगों को इस केस में दबा सकते हैं. सो दैट इज वाई टू इंश्योर दैट डज नॉट हैपन यहाँ पे जजमेंट्स आए हैं. तो एक जजमेंट्स देखते हैं. M. मोहन वर्सेस स्टेट 2011 का केस है. So again talking about direct links, then we have कर्नाटका हाई कोर्ट ने का भी केस है 2023 जहाँ पे LGBT का केस था ये. And finally उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. Okay, so whatever we just discussed about direct links is mentioned in these earlier judgments. Abatement of crime I told you is a serious crime because यहाँ पे firstly it's a non-bailable offense, यानी आपको bail is not given as a right. You need to have you need to have the court's discretion in this. Further, it is it's cognizable, okay, so compoundable, cognizable जिसका मतलब है आप arrest किया जाता है without a warrant. And with regard to non-compoundable का मतलब है कि आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के साथ केस को बंद नहीं कर सकते हो कंप्लेनेंट के साथ. ये पूरा सिस्टम चला जाएगा थ्रू द प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स. यू कैन नॉट डू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट. ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट हैव बीन कंसिडरिंग बिकॉज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज कंसिडर्ड एज अ बिग क्राइम. Let's proceed to the next article. Now next article is defense related. हम देखेंगे 2 ऐसे articles with regard to defense. तो पहला है थर्ड जो है इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस. ओके, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किसका सिस्टम है? ये है यूएसए का सिस्टम. इट्स एन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ यूएसए. सो हमको रिसेंटली ऑफकोर्स न्यूज में हमने कई बार देखा है, एंड रिसेंटली इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने टारगेट किया यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स इन लेबनान, राइट. सो इसकी वजह से ये इसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इजराइल को. इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस वी आर सीइंग यूएसए यहाँ पे भेज रहा है थर्ड सिस्टम, थर्ड बैटरी. सो थर्ड बैटरी क्या है? यू नो इट हैज प्रॉपर सोल्जर्स एंड यू नो ट्रक सिस्टम्स होते हैं, इंटरसेप्टर, सर्वेलेंस, रेडार, सब कुछ होता है इस थर्ड में. सो इट्स नॉट ओनली दैट इट इज एक्सपेंसिव तो है ही, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स यूएस मिलिट्री पर्सनल टू ऑपरेट इट. तो ये इतना ईजी नहीं है. तो यहाँ पे यूएस ने किसको भेजा है? ये इजराइल को. ठीक है, यूक्रेन भी मांग रहा था बट यूक्रेन को अभी तक दिया नहीं है. बट दिस वाज द केस वेयर वी सी दैट यूएस हैज बीन gifting this. So here it has again brought about the big context about what is US role in trying to reduce this conflict in the region, in the Middle East. तो यहाँ पे यूएस कह रहा है मैं ये क्यों दे रहा हूँ? फर्स्टली बिकॉज ऑफ
द बॉर्डर एडजस्टमेंट्स ऑफ द यूएस मिलिट्री एज वेल एज हमारे अमेरिकन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द मिडिल ईस्ट, ताकि ईरान को हमको टारगेट कर रहा है, इसको हम इनको बचा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द यूएस इज सेइंग. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द होल आर्टिकल. Proceeding to the next one and the last article of the day, which is talking about MQ-9B. तो देखते हैं ये क्या है. MQ-9B जो है ये क्या है, ये ड्रोन्स हैं. ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. ओके, सो दीज ड्रोन्स, यहाँ पे 3.5 बिलियन का डील है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम होम, फ्रॉम यूएसए. तो ये यूएसए का ड्रोन्स है जहां पे हमने अग्रीमेंट किया है, कंक्लूड किया है डील टू ब्रिंग दिस ड्रोन्स इन इंडिया. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्रेडेटर एंड विद रिगार्ड टू रीपर. ओके, सो दीज आर द नेम्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. यहाँ पे हमको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है इंडिया, and the world's most largest exporter of defense equipments कौन है? That is USA. Okay, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है. We just saw about Thar and we also now saw about the MQ-9B drone. So that is all for today, जहाँ पे हमने बहुत सारे interesting articles देखे हैं. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video where I'll be discussing about the 20 questions. Thank you.